सहकारी क्षेत्रना शिरोमणी श्रीमान घनश्यामभाई अमीन, भाई श्री नरहरिभाई अमीन, श्री दिलीपभाई संघाणी, श्री अजयभाई पटेल, श्री विपुलभाई चौधरी, आदरणीय श्रीमान शिवराज जी, मंच पर विराजमान सर्वे महानुभावों અને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી પધારેલા સહકારી ક્ષેત્રના સૌ આગેવાનો, ગુજરાત બહારથી પધારેલા સર્વે મહેમાનો, આપ સૌનું ગુજરાતની ધરતી પર હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. આ ભૂમિ સહકારની ભૂમિ છે. આ ભૂમિ सहकारी क्षेत्र उमदा मापदंडों स्थापित करने भूमि है. आ भूमि सहकारी क्षेत्र द्वारा विश्व में पोतानी एक ओळख ऊभी करी है. एवी आ भूमि है અને એ ભૂમિમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરતા હું અત્યંત ગૌરવ અને આનંદની લાગણી અનુભવું છું. तो सहकारी क्षेत्र में अनेक बार अनेक विषयों पर आप सौ मित्रों साथे बातचीत करने मैंने अवसर मळ्यो छे. गुजराते पुरवार कर्युं छे कि सहकारी क्षेत्र में जेम सहकारितानी भावना होय एम राज्य અને સહકારી ક્ષેત્ર વચ્ચે પણ સહકારિતાની ભાવના હોવી જોઈએ. જેમ રાજ્ય અને સરકાર વચ્ચે સહકારિતાની ભાવના હોવી જોઈએ એ જ રીતે સહકારી ક્ષેત્ર અને સામાન્ય પ્રજાજનો એની વચ્ચે પણ સહકારિતાની ભાવના હોવી જોઈએ. અને એ ત્રણેય બાબતોને ગુજરાતે સુપેરે પાર પાડી છે, એને પચાવી છે. एक प्रकारे गुजरातना डीएनए नो हिस्सो बनी गई है અને એના કારણે સંકટોની વચ્ચે પણ સામનો કરીને આપણે આગળ ધક્યા છે. જે વખતે માધુપુરા કોઓપરેટિવ બેંક પર આફત આવી, આફતના મૂળમાં જે લોકો હશે પણ એના કારણે આપણી નાગરિક બેંકો बधी संकट में आई गई. ए वक्ते जो राज्य सरकार हिम्मत है सुधारावादी पगला न लीधा हो तो संभव थी आ राज्य 100 करता वधारे बीजी बैंको पत्ताना मेलनी जेम खरी पड़ी. सहकारी क्षेत्र में आगे त्यारे हूँ मुख्यमंत्री तरीके पर नवो नवो हजू मारी शुरुआत थी અને સહકારી ક્ષેત્ર એવું કીધું ભૂલે ચૂકે પણ તમે એના 5 ફૂટની રેન્જમાં જાઓ તો પણ જોખમ ઊભું થાય એવી માન્યતા એવે વખતે મેં પહેલ કરેલી. અને મૂળતઃ એ વખતે ભાજપ સાથે સંબંધિત લોકો કોઈ સહકારી ક્ષેત્રમાં હતા જ નહીં, તો ઘણા કાંટા લોકો હતા. એટલે મૂળ કોંગ્રેસ ગોત્રના મિત્રો હતા. છતાં મેં એમને બોલાવ્યા અને મારે આજે જયરામભાઈ ને યાદ કરવા જોઈએ, મારે આત્મારામ કાકા ને યાદ કરવા જોઈએ કે આ બંને મહાનુભાવોએ એ વખતે સરકારના પ્રત્યેક નિર્ણયની બરાબર મીમાંસા કરી, એનું વિશ્લેષણ કર્યું. નાની મોટીમાં સુધારા જરૂરી લાગે તો સુધારા સૂચવ્યા. અને મને એમ કહ્યું નરેન્દ્રભાઈ ભલે જે ખબર થાય તમે હિંમતભેર આગળ વધો. आ जो नहीं करिए तो गुजरात को सहकारी क्षेत्र ने लूणो लागी અને એ આપણે કરી શક્યા હતા. એનું કારણ ગુજરાતના સહકાર ક્ષેત્રના મૂર્ધન્ય મહાપુરુષો જેને કહેવાય એમનો મને સક્રિય સહયોગ રહ્યો હતો અને એના કારણે શક્ય બન્યું. અને તેથી આ ક્ષેત્રે કામ કરનારા અને મિત્રો આજની જે પેઢી સહકારી ક્ષેત્રે કામ કરે છે એના જ કારણે સહકારી ક્ષેત્ર ચાલે જેવું નથી. મિત્રો ગુજરાતની સહકારી ક્ષેત્રની આજની જે સ્થિતિ છે
એના મૂળમાં 4-4, 5-5 પેઢીઓનો અવિરત તપશ્ચર્યાનો અંશ રહેલો છે. આપણા આગળની પેઢીઓએ, ચાહે માનસીભાઈ હોય, ચાહે મોતીભાઈ, અનેક લોકો મિત્રો, કેટલાને યાદ કરીએ, અનેક લોકોએ, હું આજે વચ્ચે યાદ કરતો હતો સાગરચંદભાઈ, આપ વિચાર કરો, અહીંયા હમણાં ચર્ચા ચાલી કે ભાઈ સહકારી ક્ષેત્રએ જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં જરા ડગ મારવાની જરૂર છે. શાયદ દેશમાં પહેલીવાર ખેડૂતોને કિફાયત દરે ટ્યુબવેલની વ્યવસ્થા મળે, એના ખેતરમાં પાણીની વ્યવસ્થા થાય, સહકારી પ્રવૃત્તિ દ્વારા ખેતરોમાં ટ્યુબવેલ કરાવવાનું મોટું અભિયાન સાગરચંદભાઈઓ પાડ્યું. એને એટલો મોટો ગૌરવપૂર્ણ ભવ્ય ઇતિહાસ છે આપણો, અને જેના આપણે વારસદાર છે. અને ત્યારે આપણી જવાબદારી બને છે કે સહકારી ક્ષેત્રમાં પદ પ્રાપ્ત કરવું, પદ શોભાવવું એટલું પૂરતું નથી. સહકારી ક્ષેત્ર એની પવિત્રતાને કારણે ઉજળ્યું છે. એની પવિત્રતા જાળવાય એના માટેની મોટી આવશ્યકતા વર્તમાન પેઢીએ પણ સમજવી રહી અને એ દિશામાં પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે. ક્યાં નાની મોટી ખામીઓ આવી હોય તેને સુધારવી પડશે. કારણ સામાન્ય માનવીએ આંખ મીચીને આપણા પર ભરોસો કરેલો છે. એને ત્યારે આપણે પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો. આપણે જે કહ્યું, જે કર્યું, જેમ કર્યું એ બધું જ એને આપણને સહકાર આપીને સહકારિતાની ભાવનાને ઊંચાઈ આપવાનું કામ સામાન્ય માનવીએ કર્યું. ત્યારે આપની જવાબદારી સવિશેષ વધી જતી હોય છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતની સહકારિતા આંદોલનનો પાયો એટલો બધો મજબૂત છે, કે ઘણીવાર ઇમારતમાં નાની મોટી ખામી આવી હોય તો ખબર પડતા 25-50 વર્ષ નીકળી જાય, અને એના કારણે આપણે ભ્રમમાં પડી જઈએ. તો પાયો એટલો મજબૂત છે કે નાનો મોટો લૂણો લાગ્યો હોય તો જલ્દી ધ્યાનમાં નહીં આવે. અને એવે વખતે આપણે દર 4-6 મહિને જરા જોવું પડે કે ઇમારત બરાબર છે કે નહીં. ભાઈ ક્યાં ઈંટ ખાલી છે કે નહીં જરા જોવું પડે, ક્યાં લૂણો લાગ્યો છે કે નહીં જોવું પડે. અને આમાં સરકાર કશું કરતી નથી, કરી શકતી નથી, કરવા માંગતી પણ નથી. આ સહકારી ક્ષેત્ર પોતે જ કરવું પડશે. એના શુદ્ધિકરણનું કામ ઓટો પાયલોટ જ હોવું જોઈએ. અંદર આંતરિક વ્યવસ્થા જેવી હોય કે સતત શુદ્ધિકરણ ચાલ્યા જ કરતું હોય. આ સતત શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા એ સહકારી ક્ષેત્રનું અનિવાર્ય અંગ છે. અને જો સતત શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા ન હોય તો જેમ વહેતું પાણી કોઈ એક જગ્યાએ જ્યારે ભેગું થઈ જાય તો એ ગંદવાડ બની જતું હોય છે. આ ગંદવાડ બનવા દેવું નથી આપણે. અને મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતની વર્તમાન સહકારી ક્ષેત્રની પેઢી પણ મારા કરતા આ બાબતમાં વધારે જાગૃત છે, વધારે સક્રિય છે, વધારે સામર્થ્યવાન છે અને ઉત્તમ પરિણામ આપી શકે એવી છે. મિત્રો, કેટલાક ભવિષ્યના પણ વિચાર કરી શકાય. દાખલા તરીકે મેં અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકને એકવાર વિનંતી કરી હતી. મારા મંકોડી સાહેબ કહે છે ગુજરાત બહારના લોકો છે હિન્દીમાં બોલો. मित्रों, कुछ समय पूर्व मैंने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्रीमान अजय भाई से एक बार बात की और मैंने कहा भाई सहकारी क्षेत्र के अनेक काम हो रहे हैं, क्या एक नया इनिशिएटिव आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ले सकती है? खैर मुख्यमंत्री कहेंगे तो कोई माना तो करता नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सरकार आपको सुझाव देती है इसलिए नहीं, आप इस क्षेत्र में एक नई दिशा दिखाएं, एक नया प्रयास करें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं.
आप अपने सभी डायरेक्टर्स के साथ बातचीत कर करके सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से चर्चा करके फिर अपना मन बनाएंगे। मित्रों, काम मैंने उनको ये सुझाया था कि क्या हम अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की सभी स्कूलों में बच्चों को शतरंज खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्या? शतरंज का खेल हमारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के परिवार का हिस्सा कैसे बने? हर स्कूल में शतरंज का खेल ये सहज प्रवृत्ति कैसे बने? क्योंकि इसके पीछे मेरी सोच थी कि आज की युवा पीढ़ी को, उसके मन को, उसके धैर्य के संस्कारों को सोच करके कदम रखने की आदत उसके अंदर कैसे आए, इसके लिए उसको ट्रेन करने की जरूरत है। शतरंज एक ऐसा खेल है कि जो बालक के विकास में, आज जब हम देखते हैं कभी कभी 17-18 साल की उम्र में भी बालक अपने पिता के साथ संघर्ष में उतर आता है, माँ के साथ संघर्ष कर रहा है, बाहर से घर में आया और कोई पूछता है कहाँ गए तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो बदलाव आ रहा है, ऐसे समय वो धैर्य खो देता है और कुछ भी रिएक्ट कर देता है। शतरंज के खेल में वो ताकत है कि उसके मन को तैयार करे। मैंने कहा क्या अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इसको कर सकती है? मित्रों, आज गर्व के साथ मुझे कहना है कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने इसको मिशन के रूप में, एक सोशल सेवा के रूप में काम में लिया। आज अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की सभी स्कूलों में कम अधिक मात्रा में शतरंज का खेल ये सहज प्रक्रिया बनी है। 1200 से अधिक शतरंज के टीचर उन्होंने तैयार किए और आज राज्य कक्षा की स्पर्धा में, नेशनल कंपटीशन में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रयत्नों से जो शतरंज की प्रवृत्ति चल रही है, आज उन बच्चों को एक नाम रोशन करने का अवसर मिल रहा है। मित्रों, हम कर सकते हैं। आज जब इतनी बड़ी मात्रा में आप बैठे हैं, कभी कभी ओलंपिक के जब खेल आते हैं तो हम लोगों को लगता है अरे हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता है, 125 करोड़ का देश, कुछ हो नहीं रहा है। मित्रों, उसके कारण होंगे, मैं उसकी किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया, लेकिन क्या हर डिस्ट्रिक्ट की सहकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी इकाइयां, चाहे पीएमसी हो, चाहे बैंक हो, जो भी हो, क्या सभी मिलकर एक छोटा सा हिस्सा निकालें, एक सबकी कॉमन कोई समिति बनाए और तय करें कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम हम सहकारी क्षेत्र के लोग करेंगे। मुझे बताइए, नई पीढ़ी को सहकारिता क्षेत्र क्या कर सकता है? उसके संस्कार सहज रूप से हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आज एक उम्र के जो व्यवसाय रोजगार में लगे हैं, उनका ही सहकारी क्षेत्र से संबंध आता है, नई पीढ़ी के साथ नहीं आता। अभी अपने गुजरात की बेटी शूटिंग स्पर्धा में धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में, एशिया में, दुनिया के देशों में अपना नाम रोशन कर रही है। तो मैंने अमूल को फोन किया, विपुल भाई से मैंने बताया, मैंने क्या हम इस हमारे खिलाड़ी को, ये बच्ची को हम स्पॉन्सर कर सकते हैं कि अमूल की तरफ 50 चीजें अमूल करता है। 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे। विपुल भाई ने कहा साहब आप जो कहें वो, आप बच्ची को अभी भेज दीजिए, अमूल उसकी चिंता करें। मित्रों, हम मुनाफा बांटे वो एक बात, लेकिन हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा समाज के अंदर ऐसी शक्ति को संजो सकते हैं, ऐसी शक्ति का विकास कर सकते हैं। यह एक क्षेत्र मेरे ध्यान में आता है कि और उसको हम टोकन नहीं कर सकते। आने वाले 5 साल का प्लान बनाना चाहिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि गुजरात सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाने वाले हैं। इसका मतलब है कोई नई स्कूल बनानी पड़ेगी, लेकिन आज जो स्कूल है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो करने के लिए तैयार हो, तो सरकार उसके साथ जुड़ेगी
और हर डिस्ट्रिक्ट में जो टैलेंट है उस टैलेंट को ट्रेनिंग मिले, अवसर मिले, उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था हो और हम अपने खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दें। इस काम की ओर सरकार कदम उठाने वाली है। शुरू में 2-4 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। क्या हमारा कोऑपरेटिव आंदोलन, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग, हम गुजरात को दुनिया में सीना तान करके खड़े रह सके, हमारे नौजवान, हम गर्व करें। आज भी मित्रों देखिए, स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरर जो है उनकी बड़ी वाहवाही हो रही है दुनिया में, तो हमारी कोऑपरेटिव की वाहवाही क्यों ना? और ये धन सच्चे अर्थ में काम क्यों ना है? आप सोच सकते हैं, कभी इस पर सोचिए। मुझे विश्वास है कि सहकार का समाज जीवन में परिवर्तन लाने में, नए इनिशिएटिव लाने में, एक बार हमारे यहाँ गुजरात में सहकारी क्षेत्र के मित्रों ने जल संचय के काम को प्राथमिकता दी थी। चेक डैम बनाने के अभियान को सहकारी क्षेत्र के मित्रों ने प्राथमिकता दी थी। उसका परिणाम ये आया कि इस राज्य में पानी संग्रह का, चेक डैम के काम को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई थी और सबके सहयोग से विशिष्ट निर्माण, नई परिस्थितियों में नया विचार, ये लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम ज्यादा रिलेवेंट बनते जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आर्थिक व्यवस्थाओं का ही प्रयोजन करते हो, उसका मैनेजमेंट करते हो, मुनाफा कमाते हो, पहुंचाते हो, यहां तक हम सीमित न रहे। हम समाज की शक्ति बने, हम समाज की शक्ति का विस्तार करने में काम आए, हम समाज की शक्ति को सघन करने में काम आए। अगर इन बातों को हम लेकर के चलते हैं तो हमारी सहकारिता क्षेत्र अनेक दिशाओं में आगे हम बढ़ सकते हैं। मित्रों, इन दिनों मैं हैरान हूं, सरकार सहकारी क्षेत्र में काम न लाए, ये तो मैं समझता हूं, लेकिन सरकार सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तो कोई काम कर सकते कि नहीं कर सकते? वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि गुजरात ने श्वेत क्रांति में नाम कमाया है। डेयरी के क्षेत्र में गुजरात ने अपनी एक जगह बनाई है, अपना मैकेनिज्म डेवलपमेंट हो गया है। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी काफी आधुनिकता की तरफ हमारे सहकारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। विस्तार की दृष्टि से भी पहले कच्छ सौराष्ट्र हमारा डेयरी उद्योग से वंचित रह गया था। पिछले 5-6 साल से उस पर भी बल दिया है। धीरे धीरे कच्छ और सौराष्ट्र में भी पशुपालन की दिशा में लोगों की रुचि बढ़ रही है, उनको दाम मिल जाए उसके लिए व्यवस्था पनप रही है। आज गुजरात के बाहर बहुत बड़ी मात्रा में हमारा दूध जा रहा है। गुजरात के बाहर हिंदुस्तान के नागरिकों को भी अच्छे दूध की मांग है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। भारत सरकार को 50 बार कहा गया कि आप दूध ले जाने के लिए हमें रेलवे मुहैया कराइए, रेल टैंकर्स तय करें। मैं हैरान हूं मित्रों, भारत सरकार का इतना बड़ा रेल मंत्रालय, इनकी प्रायोरिटी में हिंदुस्तान के गरीब के घर दूध पहुंचे, ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। और आज ट्रक टैंकर के द्वारा जो दूध पहुंचाया जाता है, जिस व्यक्ति के पास दूध पहुंचता है, तब तक 1 लीटर पर 1 रुपया अतिरिक्त खर्च हो जाता है। अगर हम सिर्फ, और मैंने सुना है कि हमारे डेयरी के मित्रों ने, कोऑपरेटिव के मित्रों ने भारत सरकार को कहा कि ये जो टैंकर बनानी है रेलवे वाली, उसका 4 करोड़ रुपया खर्चा आता है, वो खर्चा हम देने को तैयार है। यानी खर्चा कोऑपरेटिव मूवमेंट वाले देने को तैयार है, डेयरी देने को तैयार है, भारत सरकार की पटरी का सिर्फ उपयोग करना है। लेकिन हम जानते हैं वहां से सिवाय मौन कोई जवाब मिलता नहीं। मित्रों, हम कोई भी व्यवस्था तब चलती है जब इन व्यवस्थाओं के साथ हरेक की
उस दिशा में सोच हो। अगर हर एक की उस दिशा में सोच नहीं होगी तो काम नहीं बनता। मित्रों, सहकारिता जो चलती है उसमें एक दूसरे पर भरोसा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर भरोसा टूट जाए तो सहकारिता आंदोलन चल ही नहीं सकता। सहकारिता आंदोलन की सबसे पहली ताकत है भरोसा, एक दूसरे के प्रति विश्वास, व्यवस्था के प्रति विश्वास, दिशा के प्रति विश्वास, प्रयासों के प्रति विश्वास, तब जाकर के होता है। लेकिन कभी कभी ध्यान में आता है, अब जैसे हमारे घनश्याम भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे कि 4 बैंक लुढ़क रही थी, हम उनका मरना ही तय था, कोई हाथ पकड़े बचाए तो बच सकती थी। और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि गुजरात सरकार ने 80 करोड़ रुपया देकर के इन 4 बैंकों को बचा दिया। मित्रों, वैद्यनाथन कमेटी के माध्यम से जो फॉर्मूला बनी है, उस फॉर्मूला के तहत हमने तो 4 बैंकों को बचाने के लिए 80 करोड़ रुपया दांव पे लगा दिया। सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों पर भरोसा करके लगा दिया। लेकिन उसी कमेटी के कारण गुजरात सरकार को जो 260 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, आज कई वर्ष हो गए दिल्ली सरकार हमें पैसे नहीं दे रही। तो सहकारिता आंदोलन की सहकारिता भावना एक तरफा नहीं चल सकती। मैं हैरान हूं कि भारत सरकार, जिसने खुद ने निर्णय किया है, अपने आप किया हुआ निर्णय है, लेकिन गुजरात सरकार को सहकारिता बैंक को बचाने के लिए 80 करोड़ खर्च देती है, लेकिन इतनी बड़ी देश की सरकार जिससे हक के पैसे गुजरात मांग रहा है, जवाब मौन। हर चीज का एक ही जवाब है, हर समस्या का एक ही उकेल है, मौन, कीप मम। और उसके बाद कोई जवाब दे तो पता चले भाई क्या करें, कोर्ट में जाए, कैसे जाए, एप्लेट में जाए, कहां जाए, नहीं पूछ रहे। ठीक है, आपका कागज आया, पड़ा है। मित्रों, पिछली बार हमारे राज्य में वर्षा देर से आई, अकाल की परिस्थिति पैदा हुई और करीब 10-12 वर्षों के बाद पहली बार संकट पैदा हुआ था, क्योंकि बीच में तो हम भूल गए थे कि हमारी अकाल हो सकता है। वो एक अच्छी बारिश हो रही थी, अचानक पिछले वर्ष संकट आया। गुजरात सरकार ने योजना बनाई कि भाई बिजली के जो दाम हैं, अगर उसके हम आधे कर देंगे। दूसरा हमने कहा जो बैंक लोन लिया है किसानों ने, उस बैंक लोन के ब्याज को हम आधा कर देंगे। गुजरात ने तो कर दिया कोऑपरेटिव बैंकों में, अरबों खरबों रुपए का बोझ गुजरात सरकार को लगा। लेकिन भारत सरकार ने इस संकट में गुजरात का किसान जो नेशनलाइज बैंक के साथ जुड़ा था, उनको मदद करनी चाहिए, ढेर सारी चिट्ठियां लिखी। लेकिन भारत सरकार ने गुजरात के किसानों को, जो कि नेशनलाइज बैंक से जिन्होंने कर्ज लिया था, उनको एक नए पैसे की मदद नहीं। अब ये हमारे गले नहीं उतरता है कि कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ किसान को तो अकाल की आफत आती है, लेकिन नेशनलाइज बैंक से जुड़े हुए किसान को नहीं आती है, ये गले नहीं उतरता। सचमुच में तो भारत सरकार को उत्साह से कहना चाहिए था कि भाई आप किसान, गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होने के बावजूद भी आप नेशनलाइज बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा आपका रिश्ता पुराना है, मजबूत है, आप चिंता मत कीजिए, इस संकट में समय हम आपके साथ हैं। अगर गुजरात सरकार 2 रुपये देती है तो हम 2.5 रुपया देंगे। ये होना चाहिए। लेकिन मित्रों, कठिनाई ये है कि आज भी गुजरात का किसान गत वर्ष जो अकाल के कारण संकट में था, वो अपने मुसीबतों के समय मदद मांग रहा है। नेशनलाइज बैंकों से लोन लेने वाला किसान, उसको मदद नहीं मिल रही है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से मदद लाने वाले किसान को गुजरात सरकार के माध्यम से आज मदद मिली है, वो इस संकट से बाहर आया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरकारें भी, अब मैंने आज नाबार्ड की चर्चा सुनी,
मित्रों, नाबार्ड को निर्णय क्या करना क्या नहीं करना उसकी कोई प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहली बात है तो घनश्याम ने आधे वाक्य में उसका उल्लेख किया। हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है, वो है हमारे संघीय ढांचे को ही संकट में डाला गया है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ही तहस नहस करने का प्रयास हो रहा है। इस देश के सभी राजनेताओं को समझना होगा कि ये देश न दिल्ली चलाता है, यह देश न गांधीनगर चलाता है। ये देश सभी राज्य मिलकर के, भारत सरकार और राज्य सरकार सब मिलकर के चला रही है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई नीचे है, न कोई ऊपर है। हम सब सहकारिता के आंदोलन की तरह एक समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बंधुता का भाव, तब जाकर के देश चल सकता है। लेकिन ये जो मूड बना है इन दिनों, अब ये सही है कि सहकारिता क्षेत्र राज्य का विषय है, इट्स स्टेट सब्जेक्ट। अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो आप कौन होते हो राज्य को पूछे बिना इस प्रकार के नए नई योजनाएं घोषित करो, कानून घोषित करो, नई व्यवस्थाओं में परिवर्तन करो। सहकारी क्षेत्र के लोगों को वो व्यवस्था पसंद है नहीं हो, बात का विषय है। सहकारी क्षेत्र को नाबार्ड की नई व्यवस्था आवश्यक लगती है नहीं लगती हो, बात का विषय है। सबसे अहम बात यह है कि आप फेडरल स्ट्रक्चर को आप सम्मान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमारे संघीय ढांचे का आप सम्मान करना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर राज्यों के अंदर ये अधिकार राज्यों के क्षेत्र में आता है तो केंद्र सरकार का काम होता है कि वो एक सजेस्टिव बात भेजे, राज्य अपने सहकारिता क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा करें कि भाई ये सुझाव आया है, आपको क्या लगता है, और जो भी राज्यों के लोगों का ओपिनियन होगा उसके आधार पर पॉलिसी बनती है। लेकिन इन दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से योजनाएं थोपी जाती हैं, राज्यों के सब्जेक्ट पर भी अतिक्रमण किया जाता है और राजनीतिक हेतु से अपने तरीके से योजनाएं घोषित करना और सारा बोझ राज्यों के ऊपर डाल देना, यही काम करना। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी हो, गुजरात में 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल गत करीब 8-9 वर्ष से गरीबों को पहुंचाया जाता है ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। इससे बड़ी कोई फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकती। अभी भारत सरकार एक ऐसा नियम ला रही है जो हमारी थाली से, गरीब की थाली से रोटी छीन लेने का कार्यक्रम कर रही है। कहते तो है कि हम गरीब को रोटी देने का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के अनुभव से मैं बताता हूं, भारत सरकार का क्या काम था। उनका काम यह था कि भाई ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर के द्वारा आप पूरे राज्य में सर्वे कराइए। इस पैरामीटर में आने वाले लोग एक फूड सिक्योरिटी बिल के लाभार्थी होंगे। आप तय करो, झोपड़ी में रहता है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है, साइकिल नहीं है, दिखना है, तो भी आपको पैरामीटर तय करना, भारत सरकार तय करे। हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए समान पैरामीटर हो और फिर उसका सर्वे हो, और उस सर्वे में कहीं पर 2 करोड़ लोग मिलेंगे, कहीं पर 1.5 मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे। फिर तय होना चाहिए कि ये खोज करने के बाद, सर्वे करने के बाद जितने लोग निकले हैं उनको ये लाभ मिलेगा। मेरी बात बराबर समझ आ रही है भैया? मैं समझा पा रहा हूं आपको? जरा मुझे पता चले ना, क्या ठीक से समझे रहे? होना तो यही चाहिए, पहले सर्वे होना चाहिए और तय हो गई इस राज्य में 2 करोड़ है, इस राज्य में 1.5 करोड़ है, इस राज्य में 1 करोड़ है, तय हो और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको मदद मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने क्या किया है? उन्होंने कहा फलाना राज्य इतनी संख्या, टिकना राज्य इतनी संख्या,
फलाना राज्य इतनी संख्या, उनके प्रिय राज्य है उनको ज्यादा संख्या, उनको अप्रिय राज्य है उनको कम संख्या। और फिर क्या कहा, अब आप, हमने बता दिया भाई 1.5 करोड़, अब आप नीचे खोजो ये 1.5 करोड़ कौन होंगे, पैरामीटर आप तय करो। क्या कभी ये उल्टी गाड़ी चल सकती है? पहले सर्वे होना चाहिए, संख्या तय होनी चाहिए, फिर आंक तय होना चाहिए। और भारत सरकार की योजना के कारण क्या हुआ है, आज गुजरात में जो लाभार्थी हैं, जिनको एक्चुअली 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलता है, इसमें 1,47,00,000 1,47,00,000 इन लोगों के थाली से भारत सरकार ने खाना छीन लेने का अभी प्रावधान किया। मित्रों, ये जो चल रहा है, भारत के संघीय ढांचे को अस्वीकार करना, योजनाओं के नाम पर वाहवाही लूटना, लेकिन गरीब के साथ चीटिंग करना, मैं हैरान हूं। और भारत सरकार से मेरा आग्रह है, वो पैरामीटर तय करें जो उनको ठीक लगे, जो उनकी ताकत हो मगर से करे, और उस पैरामीटर के अनुसार सर्वे हो, और सर्वे के तहत जो संख्या हो उनको ये लाभ दिया जाए। ये आप स्लैब सिस्टम नहीं ला सकते। और इतना ही नहीं, किस राज्य को कितना लाभ मिलेगा इसके पैरामीटर क्या है। आपको प्रिय राज्य हो वहां तो करोड़ों लोगों को लाभ, आपको अप्रिय राज्य हो वहां पर करोड़ों लोगों के बजाय लाखों लोगों को लाभ। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और इसलिए सिर्फ राजनीतिक हेतु के कारण अगर ये प्रवृत्तियां चलती हैं तो भाइयों बहनों बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आप सहकारी क्षेत्र के लोग समाज के सुख दुख की संवेदनाओं को समझने वाले लोग हैं, और इसलिए मैं अपने पीड़ा को आज आपके सामने व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, सहकारी क्षेत्र के आप लोग बैठे हैं, मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि सुझाव आप लोगों के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, लेकिन सोचना चाहिए। हमारे यहां सहकारी क्षेत्र में लगातार चुनाव होते रहते हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं कोई सहकारी क्षेत्र का चुनाव न चल रहा, लगातार चल रहा। और चुनाव के लिए फिर मतदाताओं को लाना ले जाना, आपको कितना खर्चा होता है मुझे मालूम है, आप लोगों को कितनी कितनी कठिनाइयां जीतने के लिए, ये सब मुझे मालूम है आपकी कठिनाइयां। गुजरात सरकार ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, टेक्नोलॉजी, पंचायती राज व्यवस्था के लिए, नगर पालिका, महानगर पालिका, सरपंच, ग्राम पंचायत के लिए। और वो सॉफ्टवेयर ऐसा है और फुल प्रूफ है, भारत सरकार ने इसको बराबर देखा है। कोई भी वोटर अपने घर से अपने मोबाइल से वोट दे सकता है, अपने मोबाइल फोन से वोट दे सकता है। क्या भविष्य में सहकारी क्षेत्र के मित्र, अब तक उनके वोटर्स फिक्स हैं, संख्या सीमित है, रोज बरोज के संपर्क में होते हैं, वे अगर इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना अगर चाहते हैं, हम थोपना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं तो बिना खर्च लिए ये टेक्नोलॉजी गुजरात सरकार कोऑपरेटिव वाले मित्रों को देने के लिए तैयार है। ये अगर हम करने में सफल हो गए मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, हिंदुस्तान में आज जो वोटिंग की पद्धति है, चुनाव में भी घर से जाना पड़ता है, क्यू में खड़े रहना पड़ता है, फिर बटन दबाना पड़ता है, अगर ये प्रयोग हमारा व्यापक रूप से कोऑपरेटिव में सफल हो गया तो भविष्य में हिंदुस्तान भी जनरल इलेक्शन के लिए भी हो सकता है उस टेक्नोलॉजी पर चल पड़ेगा। तो कितना खर्चा बच जाएगा, लोगों का समय कितना बच जाएगा। अपने घर में अगर वो व्यक्ति चुनाव के दिन दिल्ली में है, उसको वोट करना है, तो दिल्ली में भी अपने मोबाइल से वोट कर देगा, उसका वोट रजिस्टर हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकली फुल प्रूफ सिस्टम। क्या हम कुछ इनोवेटिव सोच हमारी सहकारी क्षेत्र की व्यवस्थाओं में कर सकते हैं? तो हमने करनी चाहिए। और मुझे विश्वास है मित्रों कि आप लोग जिस दिशा में सोच रहे हैं उसमें कुछ न कुछ नई चीजें होगी। एक विषय है तो जरा चिंता का है
जिसको मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। मित्रों, यूपीए सरकार एक ऐसा निर्णय करने जा रही है जिसका सबसे बड़ा नुकसान गुजरात को होने की संभावना, और वो है यूरोप के साथ भारत सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रही है। अब मजा देखिए, यूरोप के अंदर पार्लियामेंट में गाजे बाजे के साथ वहां की सरकारें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वाहवाही कर रही है। वहां की सरकारें गौरव से कह रही है कि हम हिंदुस्तान के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। उनके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को बताते हैं। लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो दूसरा पार्टनर है वो हिंदुस्तान है। वो इस विषय में चुप है, मौन है। क्या ये देश का अधिकार नहीं है जानने का कि हिंदुस्तान के जनता की तरफ से जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, किसकी भलाई के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस देश की जनता को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। मित्रों, अब तक पार्लियामेंट में भी भारत सरकार इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुई है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा, बहुत समझने का विषय मित्रों। सारे यूरोप में जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सारे हिंदुस्तान खरीदेगा, इस देश के नागरिक खरीदेंगे, भारत में वो डंप होगा। मुझे बताइए, विदेश से अगर मिल्क प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आने वाले हैं तो हमारे गुजरात के डेयरी उद्योग का होगा क्या? हमारे अमूल को कौन छुएगा, कौन खरीदेगा? हमारे गुजरात के किसान जो आज डेली 35 से 40 करोड़ रुपया दूध की बिक्री में गांव में जाता है, वो कहां जाएगा? बंद हो जाएगा। मित्रों, इतना बड़ा संकट आने की संभावना है, लेकिन भारत सरकार हिंदुस्तान को अंधेरे में रख करके आगे बढ़ रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान की जनता को विश्वास में लेना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आपकी क्या शर्तें हैं, क्या एग्रीमेंट है, वो इस देश की जनता के सामने खुला करना चाहिए। इस देश के अंदर डिबेट होनी चाहिए। हिंदुस्तान के सहकारिता आंदोलन के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, डेयरी उद्योग में जुड़े हुए लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, पशुपालकों को विश्वास में लेना चाहिए, और उसके बाद भारत सरकार ने जो भी एग्रीमेंट करने की जरूरत लगे वो करे, लेकिन देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए। अगर ये एग्रीमेंट हुआ तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विदेशों से कितनी बड़ी मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट हिंदुस्तान में डंप हो जाएगी, और इतनी बड़ी मात्रा में अगर हिंदुस्तान में डंप हो जाएगी तो मैं नहीं मानता हूं कि हमारा पशुपालक पशुपालन के काम को कर पाएगा। उसको पशुपालन महंगा पड़ जाएगा। और मित्रों, ये देश कैसा है? ये श्री कृष्ण की भूमि, ये कृषि प्रधान देश, ये ग्वालों का देश, गौ पूजा में विश्वास करने वाला देश, पशुपालन में जीव दया में विश्वास करने वाला देश। ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार के कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। दूध के उत्पादन के लिए तो इंपोर्ट करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर एक बहुत बड़ा संकट देश में पैदा होने वाला है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको पिंक रिवॉल्यूशन का पता होगा। मैं तो पिंक रिवॉल्यूशन, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे अब दिल्ली की सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है। ये पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब है जो मांस होता है, मटन होता है, उसका कलर पिंक कलर होता है। और भारत सरकार को लगता है कि अगर हम मटन एक्सपोर्ट करें दुनिया में तो हमें बहुत फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, इसलिए कत्लखानों को सब्सिडी दी जा रही है। दूध ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिल रही मित्रों, लेकिन अगर आप मटन ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो 1 किलो मटन ट्रांसपोर्टेशन पर 5 रुपया सब्सिडी दी जाती है। अगर आप कत्लखाना बनाते हो तो भारत सरकार आपको
15 करोड़ रुपए सब्सिडी देती है, लेकिन आप डेयरी बनाते हो तो आपको एक नया पैसा सब्सिडी नहीं मिलती। यानी पशुपालन करो, दूध उत्पादन करो, अच्छा दूध गरीब के घर पहुंचाओ, उसके लिए 1 रुपया नहीं है, लेकिन पशु को काटो, उसका मांस बेचो, दुनिया में एक्सपोर्ट करो, उसके प्रमोशन के लिए अरबों खरबों रुपया दिल्ली की सरकार खर्च करती है। मित्रों, अगर ये स्थिति रही, आप कल्पना कर सकते हो मित्रों कि हमारा ये सहकारिता आंदोलन की एक प्रमुख धारा गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव है, उसको कितना बड़ा नुकसान हो। और भारत जीव दया में विश्वास करने वाला देश है, वहां पर पशु कभी बोझ नहीं बना है। और पशुओं को काटने का जो अभियान चला, उसका परिणाम ये आया है कि छोटे छोटे पशु भी, उनका भी स्मगलिंग होता है। आज बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हमारे देश से स्मगल किए हुए पशु जा रहे हैं। बांग्लादेश में उसका कत्ल होती है और विदेशों में माल जाता है। क्या हमने हिंदुस्तान की जो मूलभूत अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था की रक्षा करनी है नहीं? मैं मानता हूं मेरे सहकारी क्षेत्र के भाई यहाँ बैठे हैं, मिल्क कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हुए भाई बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा, और इसका कारण है कि उनको कोई सोच नहीं है, देश हमारा क्या है, कहां जाना चाहता है, कोई कल्पना नहीं है। और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज के पूरे दिन भर आप सब जो विचार विमर्श करने वाले हैं, उस विचार विमर्श में इन गंभीर विषयों पर भी आप लोग चर्चा और चिंतन करेंगे। 3 और बातें मैं आपको बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, आने वाले 17-18 अगस्त, 17 और 18 अगस्त हम गांधीनगर में पूरे हिंदुस्तान का ग्रामीण विकास का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। देश भर के लोगों को हम बुलाएंगे। हमारी सोच क्या है, हमारा मॉडल क्या है, हमने क्या काम करके दिखाए गांव के लिए, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के और राज्यों ने क्या क्या अच्छा किया है, हम सीखना चाहते हैं। और गुजरात को और अधिक ग्रामीण विकास की दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा, हिंदुस्तान में शायद पहली बार इस प्रकार का एक काम हो रहा है। दूसरा काम मित्रों, हम सितंबर में करना चाहते हैं। 8 और 9 सितंबर हम जानते हैं कि इजराइल हर 3 साल के बाद एक एग्री टेक फेयर करता है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कैसे आए, उसका एक ग्लोबल फेयर करता है। हमारे देश से हजारों की तादाद में किसान उस मेले को देखने के लिए इजराइल जाते हैं। एक किसान 1.5, 2-2 लाख रुपए का खर्च करता है। गरीब किसान नया सीखने के लिए विदेश जाता है, मेले में घूमता है। जो समय भाषा का भी समझ प्रॉब्लम रहता है, वो बेचारा जाकर के देख करके आता है। लाखों की तादाद में जाते हैं। क्या मित्रों, इजराइल जो काम कर सकता है वो हिंदुस्तान नहीं कर सकता है? और इसलिए गुजरात ने बेड़ा उठाया। हम 8 और 9 सितंबर यहीं पर गांधीनगर में एक वर्ल्ड क्लास एग्री टेक फेयर करने वाले हैं। कृषि और विज्ञान, कृषि और टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी को खेती में कैसे लाया जाए, पशुपालन में कैसे लाया जाए, हमारी फसल को रक्षा करने के लिए क्या किया जाए, हम सब्जी और फल पैदा करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, वैल्यू एडिशन क्या किया जाए। दुनिया में बहुत नई टेक्नोलॉजी आई है। हमारा गरीब से गरीब किसान भी उस टेक्नोलॉजी का अनुभव करें, उसको समझें, उसको स्वीकार करें। और इसलिए हम एक दूसरा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो आप लोगों के भी लाभ के लिए हैं। आप जरूर उसका फायदा उठाएं और उसमें से और नई चीजें बन पाए। दूसरी एक बात है मित्रों, दुनिया के सामने हर देश की अपनी एक पहचान बनती है। आज जो हिंदुस्तान में जो टूरिस्ट आता है तो ताजमहल के नाम पे, और जिस दिन ताजमहल बना होगा, उस बनाने वाले ने भी सोचा नहीं होगा कि सदियों के बाद वो ताजमहल गरीब से गरीब की रोजी रोटी का इतना बड़ा साधन बन सकता है। नहीं सोचा। विश्व में हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की पहचान में ताजमहल का एक हिस्सा बन गया। मित्रों, क्या हम 300-400 साल पुरानी चीजों को लेके चलते रहेंगे कि दुनिया को कुछ नया देंगे? मैं मानता हूं हमें दुनिया के सामने एक नया विश्वास और नई ताकत के सामने खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हमने एक निर्णय किया है और मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। हमने निर्णय ये किया है कि इस देश को एक करने का सबसे बड़ा काम अगर किसी महापुरुष ने किया तो उस महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमारी इस मिट्टी की पैदाश है, इस धरती के बेटे, लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने बहुत बड़ा बेनमून काम किया और सारे विश्व के इतिहास विशेषज्ञों को सरदार पटेल को जानना चाहिए। मेरी मांग है, ये मेरी भावना है। इतने बड़े महापुरुष में इतने बड़े काम को आज दुनिया में कहीं चर्चा नहीं, भुला दिया गया। इस देश की ताकत का परिचय सरदार पटेल के माध्यम से हो सकता है और इसलिए हमने तय किया है विश्व का सबसे बड़ा सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाना, विश्व का सबसे बड़ा। आज दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू जो है वो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। हम उससे भी डबल साइज का स्टैच्यू बनाना चाहते हैं और इसका हम नाम रखना चाहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का संदेश देने वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल ने देश की एकता का काम किया था और इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, सरदार पटेल किसान के बेटे थे, सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में किसानों को जोड़ने का अद्भुत काम किया था। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर के हमने तय किया है कि हम हिंदुस्तान के सभी गांवों से लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उस गांव की तरफ से लोहा भेंट सौगात के रूप में मिले। हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों से हम लोहा मांगने वाले हैं। लोहा इसलिए कि लौह पुरुष के स्मारक बना, इसलिए लोहा चाहिए। लेकिन किसी गांव में तोप है, तलवार है और कहे लो मोदी जी ले जाओ, ये तोप में से एक सरदार साहब बन जाएंगे। हमें वो नहीं चाहिए, न हमें तलवार चाहिए, न हमें तोप चाहिए, हमें लोहा चाहिए। लेकिन कौन सा लोहा? जो किसान ने अपने खेत में खेती के काम में लाया हुआ जो औजार है, वो औजार वाला लोहा चाहिए। क्योंकि सरदार साहब किसान थे, वो प्रतीक सरदार साहब लौह पुरुष थे, इसलिए लोहा। सरदार साहब ने एकता की थी, इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव से लोहा। इस पवित्र कार्य को हम सबको मिले आपकी मदद चाहिए। हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों से करना है, हर किसान से नहीं लेना है। एक गांव से एक छोटा 200-300 ग्राम का पीस। आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट का सारे हिंदुस्तान के अंदर लोग काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी रूप में कोऑपरेटिव मूवमेंट के लोग हैं। क्या हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोग इस काम को उठा सकते हैं? 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती है, उसके बाद इस काम को शुरू करना है। और फिर वैसे स्मारक बनते बनते तो 4-6 साल लग जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्मारक हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा है उससे भी डबल साइज का। और पूरे विश्व को सरदार साहब की पहचान हो, हिंदुस्तान की एकता की पहचान हो, हिंदुस्तान के किसान की पहचान हो, हिंदुस्तान के गांव की पहचान हो, ऐसा एक भव्य स्मारक हमें गुजरात की धरती पर सरदार सरोवर डैम, जहां नर्मदा मैया जाती है, वहीं पर सरदार साहब का स्मारक बनाना है। उसमें भी मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। तो इन 3 बातें 16, 17 या 17, 18 अगस्त को पंचायत वाला सम्मेलन, सितंबर में किसानों के लिए बहुत बड़ा मेला, और अक्टूबर में सरदार साहब के लिए पूरे 7 लाख गांवों में से इस बात में हम जुड़े। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबने मुझे बुलाया, शिवराज जी जैसे
महापुरुषों का सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं फिर एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का इस प्रेरणादायी उद्बोधन